کہا جاتا ہے دعا کرنے سے پہلے بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں۔ ممکن ہے ہماری دعا کو قبولیت کا شرف ملے۔ کئی دفعہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا سوچتے ہیں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ارادوں سے بخوبی واقف ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ان ارادوں کو عملی جامہ پہنائیں تو کن حالات سے دوچار ہونا ہوگا۔ مثلاً کئی بار ہم شہرت کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی شہرت بعض اوقات انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ جب بھی میں کسی شخص سے مقصد حیات پر گفتگو کرتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ شاید میں نے غلطی کی ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے مقصد حیات سے بخوبی واقف نہیں ہوتا۔ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ جب میں نے اس سلسلے میں گفتگو کی تو ایک عجیب نتیجے پر پہنچا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس بات پر ابھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں آپ ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے۔ اپنے کسی دوست سے پوچھئے کہ وہ زندگی میں سب سے زیادہ کس شے کو حاصل کرنے کا طلبگار ہے۔ آپ دیکھیں گے وہ اس سوال کا سنجیدہ جواب دینے میں کافی وقت صرف کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے ذرا سا وقت بھی نہیں نکالتے۔ وہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں۔ واقعات ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں، حالات ان میں تغیرات لاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے حالات میں تبدیلیاں لائیں یا بہتری کی کوشش کریں۔ بظاہر وہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت میں سوئے ہوتے ہیں۔ اس بحث میں پڑھنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے مقصد زندگی کا تعین نہیں کیا تو اب کر لیجئے۔ اسے باقاعدہ کاغذ پر تحریر کر لیجئے اور یہ بھی لکھ دیجئے کہ آپ کب اور کیسے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سچی کامیابی حاصل کرنے کے لیے یادداشت کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ معلوم کیجئے آپ کی یادداشت کیسی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ اپنے حافظے کو کمزور سمجھتے ہوں، لیکن میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو حیرت ہوگی۔ وہ یہ کہ خدا کے فضل سے آپ کا حافظہ بہت خوب ہے۔ یقین کیجئے آپ کا حافظہ مثالی ہے۔ مشکل صرف یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ دراصل حافظہ بھی ایک فن ہے۔ اس فن کا ماہر بجا طور پر امریکہ کا ہیری لورین ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بہت کم لوگوں کا حافظہ خراب ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کوئی بات یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یقین نہیں آ رہا؟ غور کیجئے، جب آپ کا تعارف کسی شخص سے کرایا جا رہا ہوگا، کیا آپ اس کا نام یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر آپ عام لوگوں کی طرح ہیں تو شاید آپ اس کا نام صحیح طریقے سے سنتے بھی نہیں، دوبارہ پوچھنے سے بھی شرماتے ہیں۔ کسی بات کو یاد رکھنے کا اصول بہت پرانا ہے، اتنا پرانا کہ قدیم یونانی بھی اس سے بخوبی واقف تھے۔ اس اصول کو لوکس کہتے ہیں۔ لوکس کا مطلب ہے محل وقوع، اور علم حافظہ میں لوکس کا مطلب ہے محل وقوع اور علم حافظہ میں لوکس وہ جگہ کہلاتی ہے جہاں ہم چیزیں رکھتے ہیں۔ یہ جگہ حقیقی نہیں، محض تصوراتی ہوتی ہے۔ اپنی یادداشت کو ترتیب دینے کے لیے آپ کو اپنے ذہن میں یہ عمارت تعمیر کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ مندرجہ ذیل اشیاء کو یاد کرنا چاہتے ہوں تو اسی ترتیب سے فہرست پڑھیے اور بتائیے کہ کیا آپ ان کے نام یاد کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 چابی، نمبر 2 ٹائپ رائٹر، نمبر 3 موٹر کار، نمبر 4 سگار، نمبر 5 الماری، نمبر 6 لغت، نمبر 7 بجلی کا چولہا، نمبر 8 ٹوپی، نمبر 9 خطرناک بجو، نمبر 10 بید کا درخت، نمبر 11 مصری مومیاں یعنی حنوط شدہ لاش، نمبر 12 ہوائی جہاز کا ماڈل، نمبر 13 پائپ ریک، نمبر 14 گرد کش، نمبر 15 خلائی جہاز، نمبر 16 چٹنی والا قیمہ، نمبر 17 خاتون کا شام کا لباس، نمبر 18
साहिल समंदर, नंबर 19 मोनालिसा, नंबर 20 सुकड़ा हुआ सर। मैंने जानबूझकर ऐसी अशिया की फहरिस्त बनाई है जिनमें कोई रब्त नहीं। इस फहरिस्त को पढ़ने के बाद आंखें बंद कर लें और याद करने की कोशिश करें तो शायद आप चंद अशिया के नाम गिनवा सकें। लेकिन मैं नहीं समझता कि आप तमाम चीज़ों के नाम बता सकेंगे। ताहम अगर लोकस यानी तसव्वुराती इमारत को इस्तेमाल करें तो शायद इतनी मुश्किल पेश ना आए। आइए अब मालूम करें कि लोकस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने एक इमारत है, चाबी आपके पास है, आप इमारत के अंदर दाखिल होते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही खूबसूरत टाइपराइटर नज़र आता है, लेकिन फ़र्श पर दूसरे कमरे में दाखिल होते हैं तो एक मोटर कार देखते हैं। आखिर ये मोटर कार इमारत में किस तरह दाखिल हुई? मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो बड़ी तादाद में सिगार दिखाई देते हैं। ये किस चर्सी का कमरा है? आप बू बर्दाश्त नहीं कर सकते और तेज़ी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। किस कदर खूबसूरत अलमारी है। आपने ज़िंदगी में इतनी प्यारी अलमारी पहले कभी नहीं देखी। किस कदर कुशादा है ये। ज़हन पर ज़ोर दें और तमाम अशिया को इस इमारत में देखें। मश्क जारी रखें तो आप अपनी याददाश्त में हैरत अंगेज़ तब्दीली पाएंगे। अब मैं आपको मुश्किलात हल करने का एक तरीका बताता हूँ। ये तरीका इस कदर आसान है कि आपको यकीन नहीं आएगा कि कारआमद भी हो सकता है। तावक्ती का आप इसको खुद आजमा ना लें। तरीका ये है कि अपनी मुश्किलात को आलम ख्वाब में महव कर दें, यानी इनका हल ख्वाब में देखें। क्या ये जादू है? जी नहीं, ये जादू नहीं। आपको याद होगा मैंने दिमाग के दो हिस्से बताए थे, एक हिस्सा शऊरी और दूसरा लाशऊरी। ये कारनामा दिमाग के लाशऊरी हिस्से का है। जब भी आपको किसी मुश्किल का सामना हो, दर्ज झैल तरीके पर अमल करें। पहले जिस मुश्किल को आप हल करना चाहते हैं इसके बारे में तमाम मालूमात जमा करें, ख्वाह इनका हल से कोई ताल्लुक हो या ना हो। अब आप अपनी मुश्किल को हल करने के लिए एक आखिरी शऊरी कोशिश करें। अगर आप कामयाब होते हैं तो बहुत खूब, नहीं होते तो घबराएं नहीं। फिर जब रात को सोने जाएं तो एक कलम और नोटबुक अपने पास रख लें। सोने से ज़रा पहले अपनी मुश्किल का मुकम्मल जायज़ा लें और वो बातें लिखें जो मुश्किल दूर होने का ज़रिया बन सकती हैं। आखिर में तसव्वुर में सुबह को देखें और ये ख्याल भी करें कि आपका मसला हल हो गया है। जब आप नींद से बेदार होंगे तो उम्मीद है हल आपके पास होगा। इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लें। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई हल ना मिले तो भी मायूस ना हो। दूसरी रात इसी तरीके पर अमल करें। अगर फिर भी हल ना मिले तो एक बार और इस तरीके को अपनाएं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हल जल्दी नहीं मिलता। मैं एक मुद्दत से इस तरीके पर अमल कर रहा हूँ और मुझे हमेशा एक हफ्ते के अंदर अंदर हल मिल जाता है। जब कोई शख्स मुलाजमत हासिल करना चाहता है और हर मरतबा इसे महरूम कर दिया जाता है तो इसके दिलो दिमाग पर मायूसी कब्ज़ा कर लेती है। वो अपनी दरख्वास्त लिखने में ज़्यादा वक्त सर्फ करने लगता है और अपने बारे में ज़्यादा तफसीलात लिखना शुरू कर देता है। तसव्वुर ये होता है कि मुखातिब को ज़्यादा से ज़्यादा मरूब कर सके, लेकिन फिर भी इसे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता। खुदा न करे आप भी इसी किस्म के हालात से दो चार हों तो मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। इंटरव्यू हासिल करना कुछ भी मुश्किल नहीं, अगर आपको तरीका मालूम हो। इस मकसद के लिए लंबे खतूत लिखने की ज़रूरत नहीं, गैर ज़रूरी आजिज़ी की भी ज़रूरत नहीं। दरख्वास्त लिखने पर हरगिज़ ज़्यादा वक्त सर्फ ना करें। मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करेंगे तो आपकी इब्तदाई दरख्वास्त ही बहुत मौसर होगी। जिस शख्स से मैंने अर्ज़ी लिखना सीखा इसने कामयाबी के साथ पहले ही इंटरव्यू में मुलाजमत हासिल कर ली थी। इसकी अर्ज़ी क्या थी? सिर्फ 4 अल्फाज, और इन 4 अल्फाज को भी इसने सही से टाइप नहीं किया था। ये शिकस्ता सी तहरीर अखबार के एक टुकड़े पर लिखी गई थी। लीजिए मैं आपको इस अनमोल अर्जी के बारे में तफसीलात बताता हूँ। ये उस वक्त की बात है जब इस शख्स ने इश्तहारात की अशात करने वाले एक इदारे को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया। वो नौजवान था और इसे कोई तजर्बा नहीं था। अशात के काम के लिए बहुत सलाहियत दरकार होती है और इश्तहारात की एजेंसियां तो बहुत ही महतात रहती हैं। किसी ऐसे शख्स को लेने के लिए कतई तैयार नहीं होती जो
जो तजर्बे से महरूम हो। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि मेरे दोस्त के लिए हालात कतई साजगार नहीं थे। अगर वो रस्मी सी दरख्वास्त लिखता, खूबसूरत जुमलों से आरास्ता और अच्छे तरीके टाइप किए हुए होते, तो यकीनन उम्दा अल्फाज से सजा हुआ और बहुत उम्दा तरीके से टाइप किया हुआ रस्मी ख़त इसे भी मिलता, जिसमें मुलाजमत देने से माजरत चाही जाती। लेकिन इसने रस्मी अर्जी नहीं लिखी, बल्कि वक्त का इंतज़ार करने लगा, और इस दौरान में इसने कॉपी राइटिंग का कोर्स मुकम्मल कर लिया। इस कोर्स के आखिर में कॉपी राइटिंग का एक मुकाबला हुआ। मेरे दोस्त ने भी मुकाबले में हिस्सा लिया और अव्वल आया। मुकामी अखबार ने इस खबर को शाया किया, जिसमें इसका नाम और पता दर्ज था, और ये कि इसने कॉपी राइटिंग के मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल की है। इसके बाद मेरे दोस्त ने इस अखबार से वो टुकड़ा अलहदा किया जिस पर इसकी कामयाबी की खबर शाया हुई थी, और इसी पर ये चार अल्फाज लिखे, ये बंदूक किराए के लिए है। इस अजीबो गरीब अर्जी से एजेंसी इस कदर मरूब क्यों हुई? इसकी ख़ास वजह यह थी कि मेरे दोस्त ने अपनी सलाहियत जताई नहीं थी, दिखाई थी। कहने और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। चनाचा इसने अपनी तख्लीकी सलाहियत का अमली मुजाहरा किया। अगर आप भी इस तरह कर सकते हैं तो समझ लें मुलाजमत पक्की है। कोई असामी खाली हो तो उसका इल्म आपको कैसे हो? इसके तीन तरीके हैं। नंबर एक, इस इदारे से बराह रास्त राबता कायम करने से। नंबर दो, दफ्तर रोज़गार से। नंबर तीन, अखबारात के ज़रिए। पहला तरीका सबसे बेहतर है। आप जिस किस्म का काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से मिलें जो पहले से काम कर रहे हों, और इन्हें साफ लफ्ज़ों में बता दें कि मुलाजमत की तलाश में हैं। शर्माने की ज़रूरत नहीं। दफ्तर रोज़गार अच्छी जगह है, लेकिन अगर मुझे मुलाजमत की ज़रूरत होती तो मैं सिर्फ इंतहाई मजबूरी के आलम में उस इदारे से रुजू करता। मुलाजमत के बारे में सबसे ज़्यादा मालूमात हम तक अखबारात के ज़रिए पहुँचती हैं। इश्तहारात के आखिर में आम तौर पर हिदायत दी जाती है कि दरख्वास्त में क्या कुछ दर्ज किया जाए। कुछ इदारे फ़ोन करने की हिदायत करते हैं, लेकिन ये इदारे काबिल एतमाद नहीं होते। यहाँ तनख्वाह कम मिलती है और मुलाजमत भी गैर महफूज होती है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि इश्तहार की हिदायत को आखिरी असूलों का दर्जा दे देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मेरा एक रफ़ीक कार है, इसकी फ़र्म के दफ्तर इस्तकबालिया में जो खातून काम करती है, उसने इश्तहार की हिदायत को यकसर नज़रअंदाज करके यह मुलाजमत हासिल की थी। इश्तहार में तहरीरी दरख्वास्त अरसाल करने की हदायत की गई थी। मुकम्मल तफसीलात, उम्र, तालीम, तजर्बा वगैरह दर्ज करने के लिए कहा गया था। लेकिन इस लड़की ने मेरे साथी को बराह रास्त टेलीफोन किया और इसे बताया कि चूंकि इसे ऐसे फ़र्द की तलाश है जिसे आम तौर पर टेलीफोन से साबका पड़ेगा, तो क्यों ना वो फ़ोन ही पर इसकी आवाज़ सुन ले और इसके फ़ोन करने का तरीका जांच ले। मेरा दोस्त इसकी जहानत से इस कदर मुतासिर हुआ कि इसे मुलाजमत दे दी। बाद में इसने बताया कि मुझे इस फैसले पर कभी पशेमान नहीं होना पड़ा। किन हालात में हमें इश्तहार की हिदायत को नज़रअंदाज किन हालात में हमें इश्तहार की हिदायत को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ये भी एक तवज्जो तलब पहलू है। इस सिलसिले में ये चंद बातें जहन में रखनी चाहिए।